हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट दिस प्लेटफॉर्म इकोजोन। जैसा कि बोला था कि मैं आज आप लोग को जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का क्या यूज है उससे रिलेटेड मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चूँकि मेरे पास पीपीटी था नहीं पहले से, तो मैं भी पीपीटी बना रहा था, फिर प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। मेरा नाम नितेश कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बेसिकली यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं हमारे पास, जो डिफरेंट हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, जो फर्स्ट चैप्टर से लेके चैप्टर्स 7-8 तक जो भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें एक इंडेक्स नंबर भी था। तो इन सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स का क्या यूज है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो सबसे पहले देखें कि हमारा कि ये स्टैटिस्टिकल टूल्स का क्या इंट्रोडक्शन, हम लोग देखेंगे कि वो कैसे, उसका क्या यूज है हमारा, ठीक है, उसका क्या बेसिकली वो होता क्या है एक्चुअली स्टैटिस्टिकल टूल्स, हम लोग वो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रोजेक्ट, कि हम लोग एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, कोई भी एक सर्वे होता है, तो हम उसे कैसे करते हैं, वो क्या क्या उसके लिए स्टेप्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। ओके, so if we talk about statistical tools, so these are very important for us in our daily life। हमारे प्रत्येक दिन, हमारे हर दिन का जो एक रूटीन होता है, उसमें हम कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज करते रहते हैं। So this is the first thing that we have to know about these statistical tools। Okay, so we measure something, we count something, so we make ranking, we make checklist। So everywhere there is some index number that we use, some calculation we used to do। और एक और बात कि जो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है, ये आप डिफरेंट इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स में आप इसका यूज करते हैं। जैसे प्रोडक्शन की जब बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बैंकिंग इंश्योरेंस की बात आती है, ट्रेड का बात आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग इंडेक्स नंबर देखते हैं कि हाउ मच इंडिया इंपोर्टेड समथिंग टू अदर कंट्रीज, और हाउ मच एक्सपोर्ट दैट वी डिड फॉर अदर कंट्रीज। सो दूसरे कंट्री से कितना इंपोर्ट हुआ, यहाँ से कितना एक्सपोर्ट हुआ। So all these things, all these economic activities, for measuring those economic activities, we need some statistical tools। With the help of that, we measure these economic activities, we measure these economic variables। And also for different analysis, for the third point is these tools are used for various types of analysis। So for measuring different analysis in economics or any other paper, in any other subjects, we use statistical tools। Okay, we use pie chart, we use histogram, we use bar diagram for measuring or for showing these different variables, different analysis। Then one thing is for about these statistical tools, whenever we have to do any survey, we have to make any project, in that case also we need statistical tools। So statistical tools play an important role in our whole life from the beginning to the last, for measuring different variables। As in the case of index number, we saw that for measuring the change in the variables, okay, relative change in the variables, we use index number, that's also a statistical tool। So in the same way, in our different analysis, for measuring different analysis, for doing analysis of different variables, we need a statistical tools। Then how data are collected, when we go for data collection, when we go for any survey, there also after collecting the data or before collecting the data, we need some statistical tools। With help of that, we collect the data, and then after we analyze the data। So there is importance of statistical tools in collecting data also। Then the last one is the statistical tools helps in developing a project। So if you have to make a project, if you have to do a survey, so in that case also हमें क्या जरूरत होती है, statistical tools की। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड, दोज थिंग्स। तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या है। हम लोग डाटा कलेक्ट किया कि एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स है हैविंग डिफरेंट हाइट्स, ओके, तो उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। सो ऑल दीज आर स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट वी यूज टू एनालाइज द डाटा। और कहते हैं ऑन एन एवरेज दिस मच पीपल आर गुड, ऑन एन एवरेज दिस मच पीपल आर बैड। कैसे कहते हैं, उसके लिए हमें एक स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद लेनी होती है, और उसी के मदद से हम लोग वो मेजर करते हैं। हम लोग ऐसे ही तो नहीं कह देते कि हाँ दिस मच पीपल आर
bad or this much people are good, we use some tools to measure these variables. Okay, so statistical tools helps in developing a project. हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई सर्वे करना हो, so for that we need a statistical tool. So this was introduction about the statistical tools or how it is important in our daily life. So for measuring any variables, for measuring any change, we need some statistical tools. For any survey, for any project to be happen, we need a statistical tools. Then after there is a steps towards making a project. Like what are those steps? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में भी स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद पड़ती है, तो वो सारी बात हुई कि यहाँ पे यूज कहाँ पे था. अब हम लोग देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, हमें किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है. ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को या किसी सर्वे को पूरा कंप्लीट करने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज हियर इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और एन एरिया ऑफ अ स्टडी. पहले तो क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए और जो एरिया ऑफ अ स्टडी है उसको आइडेंटिफाई करिए कि व्हाट यू वांट टू स्टडी, व्हाट वी वांट टू स्टडी. हमें आखिर किस चीज का प्रोजेक्ट करना है, किस चीज पे सर्वे करना है, वो प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअली. ठीक है. द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस चीज पे सर्वे करने चाहते हैं, सर्वे से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम सर्वे करके क्या देखना चाहते हैं. सो दोज प्रॉब्लम शुड बी आइडेंटिफाइड एट द फर्स्ट. व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी वांट टू स्टडी. ओके, सो जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे कि अगर आप प्रोडक्ट लाइक कार को, मोबाइल का, वॉशिंग शॉप का, ये सब का अगर आप देखना चाहते हैं कि सेल, ठीक है, प्रोडक्शन या सेल देखना चाहते हैं, ठीक, तो इसमें हमारा एक क्या हो गया, एक प्रॉब्लम्स हो गया कि हम देखना चाहते हैं कि जो विच टाइप ऑफ ब्रांड ऑफ वॉशिंग शॉप इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट मैक्सिमम. किस ब्रांड का शॉप ज़्यादा सेल हो रहा है, या फिर किस कंपनी की कार ज़्यादा सेल हो रहा है. ठीक है, या फिर अगर कोई कार सेल, किसी कंपनी का कार नहीं सेल रहा तो उसका क्या रीजंस है. तो हम एक प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट वी वांट टू स्टडी, हम क्या स्टडी करना चाहते हैं. ऐसे रैंडमली जाकर तो सर्वे नहीं कर सकते, वी कांट डू डाटा कलेक्शन रैंडमली. सो सबसे पहले क्या है, हमें एक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम व्हाट वी वांट टू स्टडी. ओके, so this is the first step that we have to do, identifying a problem, कि हमें क्या सर्वे करना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, what we want to study. वैसे अगर देखो द सेकेंड एग्जांपल इज वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. हम एक प्रॉब्लम देखना चाहते हैं कि गांव में, शहर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है अगर, तो उसका क्या रीजंस है. हम इस चीज़ के, इस एम के साथ हम डाटा कलेक्शन करने जाएंगे, सर्वे करने जाएंगे. सो दिस इज वन प्रॉब्लम. सो इस तरह से हमें प्रॉब्लम सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा और तब हम जाएंगे सर्वे करने के लिए, डाटा कलेक्शन करने के लिए. नाउ द सेकेंड वन इज चॉइस ऑफ टारगेट ग्रुप. टारगेट ग्रुप का चॉइस. टारगेट ग्रुप से क्या समझते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े थे सीपीआई में और डब्ल्यूपीआई में. सीपीआई में क्या था कि हम सारे गुड्स को उसके अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है. डब्ल्यूपीआई में सारे गुड्स को उसके अंदर नहीं डाल सकते. एक और बात है कि सीपीआई क्या होता है, वह डिफरेंट अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर का सीपीआई हम लोग अलग देख लेते हैं, इंडस्ट्री का हम लोग अलग देख लेते हैं, सीपीआई एज ए होल भी देखते. तो देखना पड़ता है कि जो एग्रीकल्चर का जो बास्केट है, जो फार्मर्स हैं उनका जो बास्केट है, जो उस बास्केट में गुड्स रहेगा हम उसी को मेजर करेंगे उस सीपीआई में. अब मान लो रूरल, जो कि हम एग्जांपल पहले भी एक दिया था कि अगर आप बात करते हो एग्रीकल्चरल सीपीआई की, जो फार्मर्स का सीपीआई का, तो उसमें हम पेट्रोल को ऑन एन एवरेज नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि उनका लाइफ में पेट्रोल का यूज नहीं है. जो कि स्मॉल फार्मर जिनका यूज सच में अगर नहीं है तो वहां पर हम वो पेट्रोल नहीं रख सकते उनके बास्केट में. लेकिन हाँ, if there are some farmers who are using petrol, then we can put the petrol in their basket. So different हमें देखना पड़ता है कि टारगेट ग्रुप क्या है, ठीक है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग. देन whom to focus attention, हमें किस पे ध्यान देना है. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे सीधा तो लिखा हुआ है कि फॉर सर्वे रिलेटेड टू कार, अगर हम बात करें कि हम कार को टारगेट करते हैं, ठीक है, हमको कार पे सर्वे करना है, ठीक, तो हमें किस ग्रुप को करना होगा, क्या हम उन्हें करेंगे जो बिल्कुल पुअर है, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उनको हम नहीं इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. हमें किसको इंक्लूड करना होगा, मिडिल इनकम या हायर इनकम ग्रुप्स के जो पीपल हैं, हम उनको उन पे सर्वे करेंगे अगर हमको कार के बारे में कुछ सर्वे करना है तो.
अगर हमको प्रोजेक्ट्स लाइक एबिलिटी ऑफ सेफ वाटर, ठीक है, सेफ वाटर और प्योर वाटर की अगर हम बात करें, अगर हमको इस पे कुछ प्रोजेक्ट हमें करना है, इस पे कोई काम करना है, तो हम किस टारगेट मेरा कौन होगा, वो होगा अर्बन भी हो सकता है या रूरल भी हो सकता, क्योंकि सेफ वाटर तो सभी को चाहिए। अगर हम एयर पे करेंगे तो वो सभी को चाहिए, तो उस केस में क्या है कि हमारा टारगेट रूरल पीपल भी होंगे, अर्बन पीपल भी होंगे। तो हमें वो टारगेट ग्रुप देखना पड़ता है कि किसको हमको इंक्लूड करना है, किस पे हमको सर्वे करना है, किससे हमें पूछना है क्वेश्चन, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है टारगेट ग्रुप। और वो डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चंस पे, कि आप क्या सर्वे करने जा रहे हैं। अगर कार की बात आएगी तो मिडिल इनकम या हाई इनकम, लोअर इनकम वाले पे आप नहीं जाओगे, उस टारगेट ग्रुप में आप वो नहीं रहेंगे। वैसे सेफ वाटर है तो आप रूरल अर्बन किसी से भी आप जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सभी को जरूरत है। तो वो डिपेंड्स करता है आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टॉपिक क्या है। द थर्ड वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हमें टारगेट ग्रुप पता चल गया सेकंड में, थर्ड वन क्या है, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट कर क्या, डाटा कलेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, तो वो डिफरेंट मेथड से होता है, जो कि आप लोग पढ़े थे, प्राइमरी मेथड्स होता है, सेकेंडरी मेथड होता है, या दोनों का हम यूज कर सकते हैं। प्राइमरी मेथड्स में डिफरेंट मेथड्स आप लोग पढ़े होंगे, क्वेश्चनायर था, इंटरव्यू था, ये सारा कुछ था। फिर क्वेश्चनायर्स का भी अलग फीचर्स होता है कि वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। सो हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, वो प्राइमरी सोर्स से भी कर सकते हैं, जिसको प्राइमरी मेथड बोलते हैं, या सेकेंडरी सोर्स से करते हैं, वो सेकेंडरी मेथड करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि टाइम भी मैटर करता है, कितना मनी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं डाटा कलेक्शन पे, क्योंकि जो प्राइमरी होता है उसमें आप ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। डाटा कलेक्शन के लिए आपको अलग अलग घर पे जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, उसमें मनी लगता है, टाइम लगता है। सेकेंडरी क्या है, आप इजीली कहीं से भी आप उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कम पैसा लगता है, कम टाइम लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो क्या होता है कि हमें कंपलसरी हो जाता है कि हमें प्राइमरी डाटा ही चाहिए। जैसे कि अगर आपको, जैसे एग्जांपल है कि फॉर ए सर्वे रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ ए पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ शॉप, अगर किसी खास प्रकार के शॉप के ब्रांड्स का अगर हमें सर्वे करना है कि वो उसका एक्सपेंडिचर या उस पर लोगों का क्या एक्सपेंडिचर है, उस पर क्या रिव्यू है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें डोर टू डोर जाकर सभी से पूछना पड़ेगा कि उसका क्या रिव्यू है, उनका क्या उस पर ओपिनियन है, वो किस क्वालिटी का है, उनका क्वालिटी कैसा है, उनको अच्छा लगा या नहीं लगा। So in some case there is some foundation that you have to do primary collection data. Okay, you have to collect the data from primary source, but it depends upon the money, it depends upon the time, how much you can give, how much you can donate for the survey, and then according to that you have to collect the data from primary method or secondary method, or sometime you may use both the methods, some primary and some secondary. For different variables, some variables you will take from primary method and some variables you will take from secondary method. So both also you can use. So this is the third point, that collection of data. Now the fourth one is organization and presentation of data. ठीक है, आप लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे कि डाटा से हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे कि क्या क्या डाटा आया, क्या क्या वेरिएबल्स आया, सबको अलग अलग हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक चार्ट में बना देंगे, पाई चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, बार डायग्राम के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग उसको शो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कोई एग्जांपल्स, अगर हम लोग कोई सर्वे किए हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मान लो लिटरेसी से रिलेटेड, तो हम लोग देखेंगे कि एक मान लो एक वो बनाए, एक ग्राफ बनाए, सर्किल बनाए, जिसके अंदर हम हिस्टोग्राम टाइप का, जिसमें क्या देखे कि 60% रूरल एरिया में जो मेन है वो लिटरेट हैं, 55% वीमेन है वो इलिटरेट हैं। तो हम लोग वो डिफरेंट हम लोग उसको बार डायग्राम के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं कि 60% जो मेन है वो लिटरेट है, उससे कम फीमेल हैं। या फिर डिफरेंट और भी वेरिएबल्स है, जैसे कि आप चाइल्ड को लेके कर सकते हैं कि डिफरेंट एरियाज में, रूरल में, अर्बन में चाइल्ड का क्या रेशियो है, सेक्स रेशियो पे आप बना सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में क्या सेक्स रेशियो अलग अलग है डिफरेंट स्टेट का। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, जो डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको आप कैसे प्रेजेंट करिएगा, बार डायग्राम के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू। तो ये सारा कुछ हम लोग करते हैं फोर्थ स्टेप में, जो डाटा कलेक्ट किए हैं अब उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। नाउ द फिफ्थ वन इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर था मीन, मीडियन, मोड। फिर पढ़ा था सेवन चैप्टर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसके अंदर था स्टैंडर्ड डेविएशन।
फिर एक कोरिलेशन चैप्टर था जस्ट इंडेक्स नंबर से पहले का जो चैप्टर था कोरिलेशन। तो इन सब में क्या हम लोग पढ़े थे कि मीन में क्या देखते हैं कि एवरेज देखते हैं, मीडियन में क्या देखते हैं कि बीच का वैल्यू अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, और जो मिडिल वैल्यू है। मोड में क्या देखते हैं कि किस वेरिएबल्स का किस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाउ मच हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर, तो वो क्या बताता है मोड बतलाता है। अब इन सारे मेजर्स का यूज करके जो सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है, तो हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे हम उसमें इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि एवरेज क्या है, उस पूरे डाटा का एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। और एक और जो देखिए लास्ट टाइम जो लिखा हुआ है कि दिस एनालिसिस विल इनेबल अस टू कैलकुलेट द एवरेज वेरिएबिलिटी एंड रिलेशनशिप इफ इट एग्जिस्ट एमंग द वेरिएबल्स। हमें इन सब चीज़ों का यूज करके क्या मिलेगा, इन स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करने से पता चलेगा कि उस पूरे डाटा का एवरेज क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी मतलब कितना से वैरी कर रहा है रिजल्ट्स, रिलेशनशिप अगर है या नहीं है वो पता चलेगा। कोरिलेशन का जब हम लोग यूज करेंगे तो पता चलेगा कि डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं है, या फिर वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। जो कि पढ़ते कि हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन और निगेटिव कोरिलेशन, या देखें कि रिलेशनशिप है भी या नहीं है, ठीक है, और किस तरह का है। सो दीज थिंग्स दैट वी हैव टू डू अंडर 5th पॉइंट। नाउ द 6th वन इज कंक्लूजन। अब हम लोगों ने क्या किया, डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको प्रेजेंटेशन कर दिया, उसका एनालिसिस कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब एक मीनिंगफुल कंक्लूजन्स देंगे। ठीक है, जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट किए, जो भी हम लोग सर्वे किए, तो अगर हम किसी ब्रांड्स के अगर हम लोग सर्वे कर रहे थे किसी खास प्रकार के शॉप के ब्रांड्स का, तो हम लोग मीनिंगफुल कंक्लूजन दे सकते हैं कि क्या रीजंस था कि उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये सब हम लोग, ये सब क्या होगा हमें पता चल पाएगा। ठीक है, और अगर आप कार की बात करें तो किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा कार खरीद रहे हैं, या फिर किस इनकम के ग्रुप ज़्यादा उस कार को खरीद रहे हैं, या फिर क्या प्रोफेशन है कि क्या प्रोफेशन वाइज भी कार का परचेजिंग अलग अलग होता है, कि खास प्रोफेशन वाले कार को ज़्यादा परचेज करते हैं। तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन रख सकते हैं। ठीक है, सो एक और रिजल्ट्स हमारे पास एक आएगा, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सर्वे करने से क्या था कि हम आगे के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो मार्केट में जो कंडीशन होगा वो ऐसा होगा, वो हम बता पाएंगे कि आगे आने वाले समय में सिचुएशन के हिसाब से जो प्राइस है या फिर जो प्रोडक्शन है या जो सेल है वो कैसा रहने वाला है। सो वी मस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड सजेशंस रिलेटिंग टू ग्रोथ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। तो जब हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हमें बता पाएंगे कि क्या कंडीशन है और कैसा रहने वाला है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट we had to learn today. So this is all about, so read this topic and take care. Goodbye.